ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਨਿਕੰਮੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਤਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਤਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਮੈਸੇਜ ਔਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਤੀਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਹਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਕੁਛ ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਦਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ? ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ 24 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਮਾਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਚੇਲਿਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 25 ਰੁਪਈਆ ਚ ਨਾ ਖਰੀਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ? ਬੇਰਕਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਬੇਰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਉਹ ਇਹ 25 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਲਵੇ, ਮੁਫਤ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਗਿਰ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੁੱਟ ਕੇ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਿਸਮਾ ਫਾਰਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਸਭ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਧਰ ਸਤਿਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਤਿਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਧੀਰਜ ਜੈਨੋ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ लीगल ओपिनियन लिता गया और सेशन कैंसिल। लीगल ओपिनियन की कहता है सर? देखिए, कल राज्यपाल महोदय ने पंजाब सरकार के कहने पर ये एक विशेष सत्र बुलाया था और सत्र में बुलाते समय जो पंजाब सरकार ने पत्र भेजा था और रेजोल्यूशन था, उसमें लिखा था कि सिर्फ और सिर्फ विश्वास मत प्राप्त करने वाला विचार डिस्कस होगा और कोई विषय पर चर्चा नहीं होगी, ये लिखा हुआ था उसके अंदर। राज्यपाल ने नॉर्मल रूटीन में सेशन बुला लिया। आज 3 प्रमुख नेताओं ने, विरोधी दल के नेता श्री प्रताप सिंह बाजवा, भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक अश्विनी शर्मा और सुखपाल सिंह खेरा, उन्होंने लिखित रूप से राज्यपाल को शिकायत की और पूर्व डिप्टी स्पीकर वीर देवेंद्र सिंह, उन्होंने अखबारों में बयान दिया जिसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा संवैधानिक मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पंजाब विधानसभा के जो कंडक्ट रूल्स हैं, बिजनेस के रूल्स हैं, उसमें अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान तो है, लेकिन विश्वास मत प्राप्त करने का कोई भी नहीं है। इस कारण से उन्होंने मेरे से लीगल ओपिनियन मांगा। मैंने सारा अध्ययन किया और क्योंकि ये विषय कल तक था और कल ही आया था तो आज ही लीगल ओपिनियन देना आवश्यक था। तो सारा अध्ययन करने के बाद मैंने अपना लीगल ओपिनियन दिया कि किसी भी मुख्यमंत्री को विश्वास मत तब हासिल करना होता 3 परिस्थितियों में। एक, जब सरकार बनती है, मान लीजिए उस समय स्पष्ट नहीं होता कि आपका बहुमत है या नहीं है, लेकिन आप लार्जेस्ट पार्टी हैं, तो आपको कहा जाता है राज्यपाल की तरफ से कि आपने बहुमत साबित करना है इतने दिनों के अंदर, तो वो विश्वास मत लेते हैं। दूसरी स्थिति, मान लीजिए आपको जब सरकार बनी तब बहुमत था, बाद में कहीं शंका पैदा हो गई है, कोई तोड़फोड़ हो गई है, कुछ लोग छोड़ रहे हैं, समर्थन वापस ले रहे हैं, उस स्थिति में राज्यपाल उनको कहते हैं कि आप विश्वास मत प्राप्त करो। तीसरी स्थिति, आपके खिलाफ विरोधी दल अविश्वास प्रस्ताव पेश करना चाह रहे हैं, लिखकर दे रहे हैं राज्यपाल को, विधानसभा का सेशन नहीं बुलाया जा रहा क्योंकि उसके दिन को टाला जा सके, तो उस स्थिति में राज्यपाल विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कह सकते हैं। तीनों परिस्थितियों में राज्यपाल ही निर्देश देंगे मुख्यमंत्री को कि आप विश्वास मत प्राप्त करें। अपने लेवल पर विश्वास मत प्राप्त करने के लिए ही सिर्फ एक ही मुद्दे को लेकर कानून के अनुसार, विधान के कानून के अनुसार कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। तो ये ओपिनियन उनको मैंने लिखकर दिया, इन राइटिंग में दिया है और उसको स्वीकार करते हुए उन्होंने अपना जो परमिशन दी थी, जो समन किया था, वो वापस लिया। विधानसभा का सत्र राज्यपाल ही बुला सकते हैं, संसद का सत्र राष्ट्रपति जी ही बुलाते हैं। इसलिए जब राज्यपाल बुलाते हैं और राज्यपाल को ये लगा कि ये कोई विषय ही नहीं है, बिना किसी कारण के आप सत्र बुलाना चाहते हो, तो राज्यपाल ने उस आदेश को अपने आज वापस ले लिया है। जो भी सरकार चलती है, विधानसभा चलती है, भारत के संविधान ने सभी के अंदर सीमाओं का बंटवारा किया है। मर्यादा अपनी राज्यपाल की अलग है, विधानसभा की अलग है, हाई कोर्ट की अलग है, सरकार की अलग है, मुख्यमंत्री की अलग है। सबको अपनी अपनी मर्यादाओं में रहकर काम करना होता है। तो अगर सरकार अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रही है तो राज्यपाल को पूरा हक है
कि वो सरकार को मर्यादा में रखे और ऐसा कोई काम ना करे जो संविधान के विरुद्ध हो। ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਇਹ ਲੈਟਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਸਟ ਨਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਲੈਟਰ पूरा डॉक्यूमेंट भेजे गए? ऐसा है, राज्यपाल के पास जब ये प्रस्ताव गया तो नॉर्मल रूटीन में उन्होंने साइन किए, क्योंकि राज्यपाल का कोई हित नहीं था। अगर ये जो आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं जी राज्यपाल हमारे ये है वो है, कुछ नहीं है, अगर वो ऐसी उनकी नीयत होती तो वो कल ही उस पर आपत्ति करते। नॉर्मल रूटीन में उन्होंने शुरू कर दिया। आज जब प्रमुख नेताओं ने उस पर आपत्ति की और लिखकर रिप्रेजेंटेशन भेजी, लिखकर गई हुई हैं कि इसका प्रावधान नहीं है, तो रूलों का अध्ययन किया गया और रूल्स में देखा गया कि वाकई अविश्वास प्रस्ताव का तो प्रावधान है पर विश्वास मत का कोई प्रावधान नहीं। क्योंकि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि लोटस ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। और एक सवाल हो रहा है, क्या लीगल राय सरकार वालों ली गई सी कि हाँ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ हैं? सरकार ने लीगल राय ली या नहीं ली ये तो सरकार बता सकती है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, ये सरकार बताएगी। लेकिन चाहे लीगल राय ली है चाहे नहीं ली है, पर जो उनका कदम था वो कानून के विरुद्ध था और राज्यपाल ने तुरंत उसको, जो ही सारी जानकारी उनके सामने आई, उन्होंने उसको ठीक किया है और मैं समझता हूं कि राज्यपाल का निर्णय ठीक है। अदरवाइज तो कहीं भी कोई भी विधानसभा किसी भी काम के लिए आप बुला लोगे। आज आपने विश्वास मत के लिए बुलाई है क्योंकि आपको कुछ अपने विधायकों पे हो सकता है उनकी मंशा, उन पर शक हो, और कल को किसी और काम के लिए बुला लोगे जो संविधान अनुमति नहीं देता। ये विधानसभा है, संविधान के अनुसार काम करती है, लाखों रुपए का एक दिन का खर्चा होता है, इसकी महत्वता है, आगे के लिए लोगों की एक उदाहरण की जाती है। इसलिए जो राज्यपाल ने निर्णय किया है पूर्णतः संविधान और कानून और रूल के अंदर। कोई ऐसी जगह, बंगाल में एक बार सेशन शायद ऐसा कॉल किया गया था, दिल्ली की बात करें, आपने पूरा खंगाला होगा संविधान, इतने बड़े बड़े केस आपने किए हैं। देखिए, हर एक स्थिति में जब मुद्दा उठता है तभी उस पर निर्णय होता है। मुझे किसी ने पूछा कि दिल्ली में भी तो विधानसभा का सेशन हुआ है। अब एक तो दिल्ली के रूल मुझे मालूम नहीं, मैंने अध्ययन नहीं किया। नंबर 2, मान लीजिए रूल की उल्लंघना है, हो रही थी, तो हो सकता है किसी ने आपत्ति ही ना की हो। अगर कोई आपत्ति नहीं करता तो कई बार वो विषय एग्जामिन नहीं हो पाता है। ये विषय उठा क्योंकि प्रमुख नेताओं ने पंजाब के ये विषय उठाया, और जब उठाया तो कानूनी तौर पर अध्ययन किया गया और पाया गया कि ये बात तो बिल्कुल ठीक है। हाईकोर्ट में भी कई बार ऐसे होता है, सरकारों में भी कई बार होता है, निर्णय लेने के बाद लगता है कि हम तो गलत निर्णय ले बैठे हैं, तो उसको ठीक किया जाता है। इसलिए जब मुद्दा उठा है तो निर्णय आ गया है। बाकी के क्या कंडक्ट ऑफ रूल्स हैं क्या नहीं है वो बता सकते हैं। मेरा अभी तक, मैं लोकसभा में था जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, तो राष्ट्रपति जी ने उनको कहा था कि आपको इतने दिन के 15 दिन के अंदर अंदर विश्वास मत हासिल करना है। फिर देवगौड़ा जी की सरकार आई, इंद्र कुमार गुजराल की सरकार आई, उन सबको राष्ट्रपति का आदेश था कि आपको विश्वास मत हासिल करना है। पंजाब में भी, हरियाणा में भी कई बार जब सरकारें बनती थी, अल्पमत में होती थी, पूर्ण बहुमत नहीं होता था, तब राज्यपाल हिदायत देते थे कि आप अपना बहुमत साबित करें। जिस सरकार के पास बहुमत है, कोई उसके बारे में किसी को शक नहीं है। किसी ने नहीं कहा कि श्री भगवंत सिंह जी मान की सरकार को पंजाब विधानसभा में बहुमत हासिल नहीं है, विश्वास मत हासिल नहीं है, बल्कि ओवरवेलमिंग है। 117 में से 90-92 उनके एमएलए हैं। तो फिर क्या कारण है कि आप सरकारी खर्चे पर पुनः एक बार लोगों को अपना बहुमत दिखाना चाहते हो जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है? साहब, अरविंद केजरीवाल की ट्वीट की बात करें, कहा कि लोकतंत्र की हत्या है। एक तरफ तो गवर्नर पहले कहते हैं कि ठीक है जी, उसके बाद अचानक से इसको कैंसिल कर दिया जाता है। तमाम बड़े नेता उनकी ट्वीट पर ट्वीट लोटस, ऑपरेशन लोटस की बात करते हैं। देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल जी को एक बात कहना चाहता हूं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। लोकतंत्र को ऐसा हल्का नहीं है कि जो एक राज्यपाल के सेशन कैंसिल करने से उसकी हत्या हो जाए, और ये लोकतंत्र की हत्या के इल्ज़ाम लगातार लगते आते हैं। छोटी सी बात हो जाए तो लोकतंत्र की हत्या हो गई, फिर लोकतंत्र जिंदा हो जाता है। भारत का लोकतंत्र मजबूत है, 70-72 वर्षों से चल रहा है। इसी लोकतंत्र में हर पार्टी की सरकार बनी है, केंद्र में भी बनी है, राज्यों में भी बनी है। इसी लोकतंत्र के अंतर्गत अभी 6 महीने पहले उनकी पंजाब में सरकार बनी है। इसी लोकतंत्र के अंतर्गत वो अभी बाकी राज्यों में अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। तो वह लोकतंत्र इतना सस्ता और इतना हल्का नहीं है कि एक राज्यपाल द्वारा विधानसभा का सत्र जो गैर कानूनी था उनके अनुसार, उसको रद्द करने से उसकी हत्या हो जाएगी। लोकतंत्र मजबूत है, सुदृढ़ है, जिंदा है और जिंदा रहेगा। आपने कहा कि जब आपसे लीगल ओपिनियन मांगा गया तो ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ कि लीगल ओपिनियन बड़ा फैक्ट है कि विश्वास मत हासिल करना, अविश्वास मत, ये 2 टेक्निकल वर्ड्स ने। और दूसरा लीडर्स मिले अपोजिशन जाके, यानी कि किसी सरकार ने अगर लग रहा है कि उनके ऊपर खतरा है तो वो विश्वास मत हासिल कर सकती है अगर अविश्वास है। ऐसा अविश्वास मत तो अधिकार है विपक्षी विधायकों का मूव करने का, उसके लिए निर्धारित है 10% हो, साइन करें, ये करें। तो उस स्थिति में अविश्वास प्रस्ताव पर विचार होगा। विश्वास प्रस्ताव तब हो सकता है जब राज्यपाल उनको कहें कि भी मुझे शक है कि आपके पास बहुमत नहीं है, मुझे शक है कि आपकी सपोर्ट खत्म हो गई है। जैसे अभी मध्य प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र में राज्यपाल ने कहा बहुमत साबित करो,
सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको बहुमत साबित करना पड़ेगा। शाम को 5 साढ़े 5 बजे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और 6:30 बजे मुख्यमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया, 6:30-7 बजे के आसपास। तो उसी स्थिति में होता है, अपनी मर्जी से नहीं है, नहीं तो हर सरकार यही काम करेगी, हर 15 दिन के बाद सत्र बुला लो, हर 20 दिन के बाद सत्र बुला लो। आज आपको लगता है विश्वास मत के लिए बुला लो, कल को किसी और चीज के लिए बुला लो। सरकारें संविधान के अनुसार चलती हैं, लोकतंत्र लोक लाज के साथ चलता है, कानून के अनुसार चलता है, अपनी मर्जी के अनुसार नहीं चलता। और अरविंद केजरीवाल जी वहां बैठे जो मर्जी ट्वीट करें, उनका अधिकार है, कौन उनको रोक सकता है।